सोचा सोच के सिफर नतीजा, चिंता कोई हल नहीं। जिस जम्मिया जिस सिरजिया तैनू की ओ तेरे वल नहीं। नजर मेहर दी रखे तेरे ते, ओले करदा पल नहीं। रोटी तेरी थुड़न नहीं देंदा, रोटी दी कोई गल नहीं। दाना पानी ओ चन्ना तै जगदा, सब जी उस दे ते ओ है सबदा। दाना पानी ओए किसे लुट नहीं लेना, तेरा थुड़दा नहीं हो ते वादू कोल नहीं रहना। तेरा थुड़दा नहीं हो ते वादू कोल नहीं रहना। कबरां तक दे सफर मकाउणे, की खेड तमाशे। कई कई रोने कई कई झगड़े, कई खुशियां कई हासे। ए नहीं मिलया ओ नहीं मिलया, करने पिट स्यापे। दुनिया ते भेजण वाला बंदिया, सांभू तैनू आपे। दाना पानी ओए ओने पहला लिखिया, तेरी नजर बेचैन तैनू तां नहीं दिखिया। दाना पानी ओए किथे किथे चुगना, जो जो डाडे लिखिया ओयो हो पुगना। वरियां दे तू खाब सजाउना, अगले पल दी खबर नहीं हो। दुनिया अपनी करनी चाहना, भोरा तैनू सबर नहीं हो। महल मुनारे चेते तैनू, चेते अपनी कबर नहीं हो। हक दी अद्धी खा लईए, पूरी लई करिए जबर नहीं हो। दाना पानी ओए लेखों वध ना मिले, ओदा शुक्र मना एवें रख ना गिले। दाना पानी ओए कैसी है खुमारी, दाते नालों वध के दात होई प्यारी। दाते नालों वध के दात होई प्यारी। हाय ओ रब्बा, किदन मेरी इन्हां ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਹਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਸਹਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲੋ। ਸਹਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਦਈ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਛੇਤੀ ਕੱਲੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਵੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ? ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੀ ਏ? ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਿਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਦਈ ਆ ਕਿ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਨਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਚਲੋ ਬਾਈਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਭੈਣ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਫਟਾਫਟ। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਪਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। माँ जी ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਧੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਫਟਾਫਟ ਭੈਣ ਜੋਗਾ ਜੂਸ ਲੈ ਆ। जी माँ जी। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਵੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਤਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਪੀ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਹੈ ਅੱਜ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 6 माह गुजर जाने के बाद ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਭੈਣ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰ? ਸੁਣਾਓ ਭੈਣ ਜੀ? ਆਂਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ ਏ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਜ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ? ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਘਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਸਹਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਹਿਰ ਦੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੈਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ। ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲਾਣ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਹਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੈਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਘਰ ਭਾਬੀ ਆਈਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਖੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਕਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਖੜੇ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਏ, ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਓਗੇ। ਲੈ ਭੈਣ ਦੱਸ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਹਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਅੰਗੂਠੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਚੱਲੀ ਸਾਂ? ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। आतिफ बेटा तेरे पेपर कैसे हो रहे ने? अच्छे हो रहे हैं पापा जी। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਟ ਆਏਗਾ। चलो है तो जो रिजल्ट आएगा उदो ही पता चलना है ना। मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना।
ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਲਾਮ। ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਲਾਇਕਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सबको सलाम। ਹਾਂਜੀ ਫੜੋ ਫੜੋ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਨੀ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁੰਡੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਪਸੰਦ ਏ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਵਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਖੇਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਮ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੋਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਹਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ? ਭੈਣ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਬੁਲਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੀਏ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਆਸ਼ਰ, ਦਾਨਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ। सबको सलाम। ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।
ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਸਹਿਰ ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਤਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਠਾਈ ਖਾਓ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ ਭੈਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੈਨ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਾਨਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ ਟੈਮੋ ਟੈਮ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਚ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। दानिश सुन ले। जी जी माँ जी, जैसे मेरी बहन बोलेगी मैं वैसे ही करूँगा। चलाओ फिर शॉपिंग करने चलिए। चलो चलिए, चलो चलिए। हम निकाह की रस्म का आगाज़ करते हैं। सो मेरी दरख्वास्त है दुल्हा और दुल्हन से वो स्टेज पे आ जाए सामने। अंगूठियाँ पहनाए एक दूसरे को। तालियां बजा दे प्लीज़। बस इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। आप सबको शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुबारक, खैर मुबारक। चलो ठीक है भाजी, टाइम वावा हो गया तो हुण इजाजत दे दो सानू। चलो ठीक है भाई जी, वैसे भी खुदा दा शुक्र है सारा मामला बड़ा ही अच्छा हो गया। हाँ जी हाँ जी भाजी, बड़े अच्छे तरीके नाल सारा मामला हो गया है। मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਰ ਧੀ ਦੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮਖਤਾਰੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਲਾਇਕਾ ਧੀ ਦੀ ਮਖਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਬੁਲ 6 साल का अरसा गुजर जाने के बाद मलाइका, मलाइका। जी जी दानिश। बच्चे नज़र नहीं आ रहे, बच्चे किधर हैं? आपको पता है क्रिसमस है तो बच्चे ज़रा क्रिसमस की प्रैक्टिस वगैरह है तो वो वहाँ पे गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। मैं आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं मलाइका, मैं चाय नहीं पीऊँगा। अच्छा अच्छा मलाइका, मुझे ये बताओ क्रिसमस आ गया, आपने क्रिसमस की सारी तैयारियाँ कर ली हैं? अरे अभी कहाँ, आपको पता है लास्ट टाइम पे भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। और अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने मुझे और पैसे देने हैं, ठीक है? अभी मैंने और ज़्यादा चीज़ें लेनी है। ओहो, परेशान क्यों होती हो, दे दूँगा। अच्छा जी। मम्मा पापा हम आ गए। देखो बच्चे आ ही गए हैं। अच्छा आइमा बेटा, मुझे ये बताओ आप संडे स्कूल जा रही हो तो आपके संडे स्कूल के टीचर का नाम क्या है? मेरी संडे स्कूल टीचर का नाम हीना है। ओके, तो मेरे बेटे का प्रोग्राम कब है क्रिसमस का? हमारा प्रोग्राम 23 को है। ओके। आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी अपने बेटे से कुछ पूछ लूं। जी जी ज़रूर जी। अच्छा मेरा बेटा मुझे ये बताएगा कि मेरे बेटे को करैक्टर कौन सा मिला है? मम्मा मैं क्यों बताऊँ, ये तो आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा चलो सही है, नहीं बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी टीचर का नाम क्या है? मेरे टीचर का नाम टीचर रीज है। अच्छा ठीक है। अच्छा ईमा बेटा, आपको पता है मैं आपके लिए आपकी मनपसंद की चीज़ें लेकर आया हूँ। थैंक यू पापा। वेलकम मेरा बेटा। पापा मेरे लिए भी। मेरा बेटा मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ये लो। थैंक यू पापा। वेलकम। पापा पापा आज हमने सारी क्रिसमस की शॉपिंग भी करनी है और साथ में खाना भी बाहर खाना है। जैसे मेरे बेटा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। हाँ, क्रिसमस की शॉपिंग भी करेंगे और बाहर खाना भी खाने चलेंगे। पापा एनएफसी चलेंगे। मेरा बेटा हम एनएफसी चलेंगे। चले ਜੇ ਐਨਐਫਸੀਆਂ ਸ਼ੈਫਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਏ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀ ਸਾਂ। ਧੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਨਐਫਸੀ ਸ਼ੈਫਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? मैं जा सकनी अपनी धी नूं लैके चलनी तो सोहनी छापां करवा के लियाऊंगी। मां जी आप मेरी बात तो मैं सारियां गल्लां सुन लियां ने पुत्तर, 6 सालां तो सुनदी आ रही हां। मां जी हमारी बात तो सुन ले मां जी। मां जी आज मैं बड़ा थक गई हूं। पर मैं नहीं थकी, मैं अपनी धी दी छापां कीती ते मैं क्यों थकना है? ते मैनूं कढ के वहा ते सही, उदों ते मैं वेखिया ही नहीं हैगा गौर दे नाल। खोल जरा इनू, ਐ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੂਟ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੱਚੇਗੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਲਾਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਜੀ। सहर किड्डा सोना सूट ही लगन भी महंगा रहा। भैन की गल खैर है, दानिश अपनी फैमिली बाजार लैके जाने तू सहर नूं लैके जाण दी सा। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੂਬ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਭੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵਾਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਨੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ।
ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ को इन्हें काम ना लिया कर। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਧੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਮਾਂ ਵਡੇਰੀ ਏ, ਪਿਓ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਭੈਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੀਆਂ ਵਾ। ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਰ सूट दे आइए दर्जन नू, उन्हें बाजू सीना भी नहीं है, उन्हें कहना कि रश भरा है, मेरे को कोई नहीं सीपना। हाँ जी माँ जी चलो चला। मम्मा मम्मा इधर आना, हमारा सुबह टेस्ट है, हमें आके तैयारी करवा दें। अच्छा अच्छा बेटा मैं आ रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम है, आप ना वेट करो 10 मिनट में, 10 मिनट में बस आ रही हूँ। मम्मा हम तब से आपका वेट कर रहे थे। ओहो बच्चा सॉरी, काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ना मुझे अभी टाइम मिला, तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा टाइम दे लूँ। तो चलो आप करो, मैं आपको करवाती हूँ। भाभी आ जल्दी जल्दी मेरा सूट इस्त्री करो, मैं शाम ਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਈਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਪਾਣਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਈਏ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮਾਸਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੰਨੇ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਸ पुत्र बस। माँ जी मेरी बात सुने, मैंने उनका काम थोड़ा सा डिले क्या कर दिया, आप मेरे पे आके गुस्सा करी जा रहे हैं। नहीं मैनू बंदे दे पुत्तरा में गल दस, नहीं डलेश लू मैनू नहीं होंदा। माँ जी मेरी बात मेरी गल सुन ले, अज पुत्तर दाना छा ले ते फिर तेरी कहानी खत्म। माँ जी आप माँ जी मेरी बात तो सुन ले। मम्मा दादू आप पर कितना गुस्सा करते हैं, हालांकि आप घर के सारे काम भी करते हैं और फिर भी वो आप पर कितना गुस्सा करते हैं। मेरा बेटा वो बड़े हैं ना, कोई बात नहीं, अगर उनको गुस्सा था तो वो कोई बात नहीं, बड़ों की बातों का गुस्सा थोड़ी करते हैं, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने बातें की हैं तो वो बड़े हैं, ठीक है ओके चलो। ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਵੋ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਆਹੋ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਏ। माँ जी अब्बा जी क्या हुआ, आप दोनों आपस में ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਲਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਝੀ ਆ ਪਾਗਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਸਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਇੱਥੇ? ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਏ। माँ जी अब्बा जी प्लीज आपस में इतनी लड़ाई ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਕਾਮ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਘਰ ਜਾੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। माँ जी अब्बा जी प्लीज़ आप ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो घर का माहौल ख़राब होगा, प्लीज़ आप ना लड़ाई झगड़ा किया करें। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਭੱਜ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ 2 ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ बीवी 'ਚ खुशबाश रह। माँ जी ये आपका घर है और आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही मैं मलाइका से बात करता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा फिर मेरी गल सुन, जरा सही तरीके नाल क्लास लैनी आ। जी माँ जी। चल फिर मैं चलनी हूँ। जी माँ जी। पता नहीं मेरे घर को क्या होता जा रहा है। दिन ब दिन मेरे घर के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आपी। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। जी जी। भाई मेरी इस घर 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। सहर आपी आप पहले हम बाद में। ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सहर आपी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज ही मलाइका से ज़रूर बात करूँगा। ਜੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ। सहर आपी ऐसी बातें ना करें। सलाम भाई साहब, मैं आपकी तरफ ही जा रहा जी था। इस्लाम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। अच्छा आप घर आइए फिर बात जी करते जी हैं। आए आए। बैठिए भाई साहब। क्या हुआ दानिश बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? भाई साहब क्या बताऊँ आपको, मैं मलाइका से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, दिन ब दिन मेरे घर के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मेरे घर के हालातों को ठीक करे। जी दानिश बेटा, मैं देख रहा हूँ जब अब शादी से पहले आप खुश रहते थे और अभी आपके हालात चेंज हुए हैं, आप उदास रहते हो। सो चलें दुआ करते हैं। आमीन। दानिश बेटा, मैंने देखा है दुआ में कि आपके कारोबार में भी कुछ मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं, आपके घर में भी जो हालात हैं वो चेंज हो चुके हैं। मुझे दुआ में नज़र आ रहा था सब कुछ। जी ठीक है, मुझे इजाज़त दे, मैंने जाना है अगले घर। थैंक यू सो मच। मलाइका, मलाइका। जी जी दानिश क्या बात है, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। बस मलाइका बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ कि मेरी बहन ने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे एक ड्रेस प्रेस कर दो और तुमने उसे इतनी बातें सुनाई कि वो अकेली कमरे में बैठकर रो रही थी। ना तुम मेरी इज्जत करती हो और ना मेरे माँ बाप की इज्जत करती हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? दानिश मेरी बात तो बस मलाइका, आज जो फैसला होगा मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को कॉल करता हूँ, फैसला कर वही करेंगे। बेटा दानिश नहीं नज़र आ रहा। पापा वो ना काम से कहीं गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। सलाम जी। सलाम। क्या बात है दानिश बेटा, आपने इतने गुस्से में मुझे फ़ोन क्यों किया? बस अंकल जी, आप अपनी बेटी से खुद ही पूछ लीजिए। क्या हुआ मलाइका बेटी? पापा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आप माँ जी हैं तो वो हर टाइम मेरे पे गुस्सा रहती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने उनका बिगाड़ा क्या है, ठीक है। और दानिश उनकी बातें सुनकर मेरे पे आके गुस्सा करते रहती हैं। और बाजी तो बस मलाइका, तुम कौन होती हो मेरी बहन के बारे में बात करने वाली? खबरदार, एक शब्द भी मेरी बहन के बारे में बोला तुमने। बेटा आराम से, हम बड़े बैठे हैं ना फैसला करने के लिए। अच्छा की आंदे पे मैनूं दस तो सही, तू मेरे पुत्तर ते क्यों रो पानी है? भैन जी जिहड़ियां तुसीं गल्लां करन हो ना, उन्हां ते सानूं यकीन नहीं है। असीं अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। आहो इस घर ते ही झूठे पागल ते फरेबी बैठे आ। मैं ना बुलाउनी आ जरा महल्लेदारां नूं ते तैनूं सारा कुछ तेरी कट्टी धी दियां करतूतां दसदे ने।
ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? चलो फिर सॉल्व करो। बस अंकल जी, अब जो भी फैसला होगा वो पंचायत में जाकर होगा। बात खत्म। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। जी जी जरूर। सलाम चौधरी साहब। सलाम जी। चौधरी साहब दोनों फैमिली आ गए, पंचायत शुरू की जाए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। चौधरी साहब गल कुछ इस तरह है अब्बा कि जी आप बैठे, मैं बताता हूँ। चौधरी साहब बात कुछ इस तरह कि काफ़ी अरसा हो गया मुझे अपनी बीवी के साथ रहते हुए, लेकिन ना वो मेरे घर वालों की बात मानती है और ना ही मेरी बात मानती है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि अब मैं मज़ीद उसके साथ रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहता और मैं उससे तलाक चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अपने बच्चों को कभी भी उसके साथ नहीं भेज सकता। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। आपके कहने के मुताबिक हर जगह आप और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक होती हैं और मैं और मेरे माँ बाप हर जगह गलत होते हैं। ਤੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ये कहाँ का दस्तूर है कि बेटे आपके होंगे? बच्चे हमेशा बाप की विरासत में होते हैं और बच्चे मेरे साथ जाएंगे। और ये किस कानून में लिखा है कि दोनों बच्चों का मालिक सिर्फ और सिर्फ बाप होता है? बैठो बैठो, फैसला तुहां नहीं करना, फैसला मैं करना है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਥੇ ਹੀ बर्खास्त की जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। पता नहीं आज पंचायत ने मेरी तकदीर का क्या फ़ैसला लिया होगा। पता नहीं आज मेरी ज़िंदगी का कौन सा नया मोड़ शुरू होगा। अगर उन्होंने मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे मेरे बच्चों से दूर क्यों करेंगे और मैं अपने बच्चों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, खुदा सब ठीक करे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, खुदा सब ठीक करे। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੈ ਪਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੈ ਪਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਗ ਦੀਆਂ, ਬਿਨ ਚਾਹੇ ਫਾਸਲੇ ਖਾਮ ਖਾ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਲੱਖ ਹੋਵਣ, ਰੱਬ ਰੱਖੂਗਾ ਡਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਊ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। हम सब अपनी अपनी अनाओं के पिंजरों में कैद होकर एक दूसरे से रूठे रहते हैं, वरना हमारे अंदर का इंसान तो सुलह चाहता है। चुप करके सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, चुप करके सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं।
ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਘੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੂਲੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਣ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ प्यार दे गुंजल पै जान छेती नहीं खुलदे कदे दिलां नूं राह दिलां दे नहीं भुलदे कदे दिलां नूं राह दिलां दे नहीं भुलदे मैनू नहीं लगदा जग्गिया मुंडा कुड़ी मिलणगे नहीं मिलते वकील साहब इजाजत है अंदर आ सकने हैं वकील साहब गल कुछ इस तरह है कि असी तुहाडा बड़ा नाम सुनिया है ते असी ये भी सुनिया है कि तुसी बड़े बड़े वड्डे केस हल कीते ने ते मैं उम्मीद करना कि तुसी मेरा केस भी मेरे हक च लड़ोगे। जी जी आपने सही सुना और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप अपना मसला बताएं। वकील साहिब बात कुछ इस तरह है कि काफ़ी अरसा हो गया मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ और कंप्रोमाइज़ कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं मज़ीद और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं उससे तलाक चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने बच्चों को कभी भी उसके साथ नहीं भेज सकता, बच्चे मेरे हक में होने चाहिए। जी जी कोर्ट में फैसला आपके हक में ही होगा, मगर मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है। पुत्र जी तुही फीस की टेंशन ना लवो, तुही जिन्ने आखोगे असी उन्नी तादी फीस अदा करांगे, पर शर्त ये वे कि मसला साडे हक दे विच होना चाहिए ते जितना चाहिए तुहानू। जी जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, फैसला आपके हक में ही होगा। चलो ठीक है फिर वकील साहब सानू इजाज़त दवो। आप फीस अदा कर दें, बाकी मुलाकात कोर्ट में होगी। वकील साहबा क्या हम अंदर आ जाएं? जी जी आए। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वकील साहिबा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दसा, मेरी बेटी ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। वकील साहबा मेरी बेटी बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। जी आप फिक्र ना करें, आपका केस बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत सालों का है। वो भी याद रखेंगे कि किस वकील से उनका पाला पड़ा है, लेकिन मेरी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। आप फीस की टेंशन ना लें, आप जितनी बोलेंगे हम अदा कर देंगे, लेकिन फ़ैसला हमारे हक में होना चाहिए। जी फैसला आपके ही हक में होगा। चलें ठीक है, अब हमें इजाज़त दें। जी मेरी फ़ीस जो है वो सेंड कर दें, अब कोर्ट में मुलाकात होगी। चेक कर लूँ। जी ठीक है।
जी कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरा नाम मुहेब है और ये मेरे क्लाइंट हैं और ये रहा इनका वकालतनामा। माय लॉर्ड, मेरा नाम अरूबा शमाउन है और ये मेरे क्लाइंट है और ये रहा मेरा वकालतनामा। केस की सुनवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट का मसला कुछ ये है, इनकी जो वाइफ है अपने सास और ससुर की इज्जत नहीं करते और मेरे क्लाइंट की ये वफादार नहीं है, इससे ये बहुत तंग आ चुके हैं, लिहाजा इन्हें इजाज़त दी जाए कि ये अपने दोनों बच्चों समेत अलहदगी इख्तियार कर लें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहब ने जो बातें की हैं वो सरासर गलत हैं। मेरी जो क्लाइंट है अपनी सासू मार और अपने ससुर की बहुत इज्जत करती हैं और अपने खावंद की बड़ी ताबेदार है। अगर ये तलाक ही देना चाहते हैं तो ये किसी भी कानून में नहीं लिखा कि दोनों बच्चों का मालिक ये हैं। ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जाएंगे और यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। माय लॉर्ड, वकील साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर एक कानून ये भी है कि बच्चे बाप की विरासत में होते हैं और बाप कभी भी अपनी विरासत नहीं छोड़ सकता, लिहाजा ये दोनों बच्चे अपने बाप के साथ जाएंगे। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जाएंगे और इसके ऑर्डर जारी करें। माय लॉर्ड, मैं मिस मलाइका से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। जी इजाज़त है। मिस मलाइका, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आप कोई जॉब करती हैं? नहीं। आपके नाम कोई जायदाद है? जी नहीं। यहाँ आपके पास कोई बैंक बैलेंस है? नहीं। माय लॉर्ड, ये सब कुछ आपके सामने ही है, ना तो इनके पास कोई जायदाद है ना ये कोई जॉब करती हैं। ये कैसे अपने बच्चों की फीस अदा करेंगी, कैसे अपने बच्चों को ये की परवरिश करेंगी? माय लॉर्ड, मैं भी दान से कुछ सवालात की इजाज़त चाहती हूँ। जी इजाज़त है। घर में लड़ाई की वजह क्या है? मलाइका की बदतमीजी। तलाक की कोई ऐसी खास वजह तो मालूम वकील नहीं। साहिबा, क्या ये आपको कोई खास वजह नजर नहीं आ रही कि मलाइका वो औरत है जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, और जो औरत मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती ना वो मेरे लायक है और ना ही वो मेरे माँ बाप के लायक है। जैसा ही आप दानिश का बिहेवियर देख रहे हैं। माय लॉर्ड, ये फैसला हमें आज और इसी वक्त सुनाया जाए। जी माय लॉर्ड, ये फैसला हमें आज और इसी वक्त सुनाया जाए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दानिश अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और बच्चे आयमा और अनीस पर हक सिर्फ़ और सिर्फ दानिश का है। कोई और फरीक इस पर हक नहीं जता सकता जब तक ये दोनों बच्चे बालग नहीं हो जाते और बच्चों की परवरिश दानिश के सुपुर्द कर दी जाती है। अदालत ये भी फैसला करती है कि मलाइका कभी भी अपने बच्चों से मिल सकती है और इन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अदालत आज ये फ़ैसला जारी करती और तमाम दोनों बच्चों को दानिश के सुपुर्द करती है और दोनों फरीकों को हुक्म देती है कि इस फैसले पर मनोअन अमल करें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत इस फैसले के साथ बर्खास्त की जाती है। आप फैसले की कॉपी आप रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हैं। ओके माय लॉर्ड। ओके माय लॉर्ड। चलो बच्चे चले। दानिश रुको, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो। मम्मा, आप हमें छोड़ के ना जाना ना, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? हम आपके बगैर
कैसे रहेंगे मम्मा? मम्मा मुझे पापा के साथ नहीं जाना, मुझे आप अपने साथ ले जाओ प्लीज़ मम्मा। चलो बच्चों, टाइम बहुत हो गया, चलो चलते हैं। चलो बच्चों। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, मम्मा पास जाना, पापा प्लीज छोड़ दो। बच्चों प्लीज, कहा ना, चलो चलते हैं। छोड़ दो मलाइका, चलो चलते हैं। मेरी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरी बेटी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बहुत कहा है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैम जी आपके लिए। कौन था माँ? ये क्या है? मेरी बेटी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? माँ देख, उन्होंने तेरी लाडो को तलाक दे दी। माँ माँ माँ, ये कागज नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जिसने मेरे हंसते खेलते खानदान को आग लगा दी। मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया सिर्फ इस कागज ने, सिर्फ इस एक कागज ने। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे से छीन ली। माँ मेरे अजीजों, चंद लम्हात की तवज्जो चाहूंगी। कुछ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं और उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत होती है। ये जो कहते हैं ना, जरा सी बात पर ताल्लुक टूट गया, अरे वो जरा सी बात हमारी बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। मेरे अजीजों, तलाक से मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर औरत कब्र तक समझौते करती है। तलाक मर्द देता है मगर कलंक औरत के माथे पर लगता है। लेकिन पास्टर साहिब, कोई मर्द से नहीं कहता कि बेटा तुमने औरत को तलाक क्यों दे दी, मगर हाय रे किस्मत, औरत को तो हर कदम कदम पर ये याद दिलाया जाता है कि तुम बीवी बनने के काबिल ही नहीं थी। मगर पास्टर साहिब, वो माँ के हजार जतन, वो बाप की मेहनत और फिक्रे, तलाक देती जुबानों को आखिर क्या पता होगा कि आखिर जहेज कैसे बनते हैं। मेरी उम्र भर की मुसाफतें मुझे एक पल न थका सकी, मेरी उम्र भर की मुसाफतें मुझे एक पल न थका सकी। तेरी एक नजर की बेरुखी से मैं जर्रा जर्रा बिखर गई। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਦਾ छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसे बदगुमानी के सुराख पैदा कर देती है कि इंसान सारी उम्र उन सुराखों में
वजाहतों की ईंटें लगा लगा कर भी अपने खूबसूरत रिश्ते नहीं बचा पाता। मैंने समझा था लौट आते हैं जाने वाले, मैंने समझा था लौट आते हैं जाने वाले, तूने दूर जाकर जुदाई मेरी किस्मत कर दी। मेरी रूदा हानी सी किस्मत कर दिती माए ओने मेरी कहानी सी। जेड़ा तुसा ने लभ्या मेरी रूदा हानी सी किस्मत कर दिती माए ओने मेरी कहानी सी। दुश्मन मेरा ता सुहाग हो गया, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया। सबसे कीमती और सबसे दुखदार लम्हात वो होते हैं जब आप सबसे कीमती चीज़ को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। मुझे लहजे बदलने नहीं आते कि लहजे जब बदलते हैं तो कोई अपना नहीं लगता। सीने लागे माए पुत पुत कहंदी रही, तेरे करके मैं ओहदे जुल्मां नूं सहंदी रही। जिन्नू सीने लागे माए पुत पुत कहंदी रही, तेरे करके मैं ओहदे जुल्मां नूं सहंदी रही। लाडली तेरी दा सब नीलाम हो गया, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया। जिन मर्दों को लगता है ना कि औरत को रुलाने से उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब औरत आंसू बहाती है ना तो रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों से आपकी मोहब्बत बह जाती है। पर जिस दिन सब्र आ गया ना उस दिन आंसू खत्म, और जिस दिन आंसू खत्म मोहब्बत खत्म। जे दी मां दे गल विच सोने दा हार तू पाया सी, सोरे ले तू मुंदरी दे विच नग जड़वाया सी। जे दी मां दे गल विच सोने दा हार तू पाया सी, सोरे ले तू मुंदरी दे विच नग जड़वाया सी। कर सोरे आंदा माए शराफ हो गया, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों बदतमीजों में मत करें। खुदा की कसम उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बिलाखिर वो खुद ही मर जाती है। बहुत हिम्मत वाली हूँ पर कभी कभी हार जाती हूँ। कुछ बातें सुनकर कुछ बदले लहजे देखकर पिछे लग मापियां दे बढ़िया फिर दा शुदाई मां। बिल्लू कुको वाल किसे दी कदर ना पाई मां, पिछे लग मापियां दे बढ़िया फिर दा शुदाई मां। जिंदगी मेरी दामाए ओ ख्वाब हो गया, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया नी माए, तेरी लाडो रानी दा तलाक हो गया। कुछ महीने गुजरने के बाद जब मलाइका बच्चों से मिलने उनके घर जाती है। दानिश पुत्र मेरी गाल सुन,
जी अब्बा जी। अगर मलाइका बेटी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਾਏ ਤੇ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਮਨੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। पापा, आज हमें मम्मा से मिलवा लाए ना। मम्मा से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। और पापा, मम्मा की बहुत याद भी आ रही है, प्लीज़ हमें मम्मा से मिला दें। आए माँ। अनीस, मलाइका, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? दानिश, कानून के फैसले के मुताबिक मैं अपने बच्चों से जब जी चाहे मैं मिल सकती हूँ। मामा, मम्मा, आपको पता है एक दिन मैंने पुप्पो को बोला था, पुप्पो मुझे खाना खिला दो। पुप्पो कहती है तुम्हारे हाथ टूटे, तुम खुद नहीं खा सकती, तुम खुद नहीं खा सकती ना। एक दिन मेरे 0 मार्क्स आए थे तो मेरी टीचर कहती है आपको क्या हो गया? आपके तो पहले फुल मार्क्स आते थे, अब आपको क्या हो गया? मम्मा, मैं टीचर को क्या जवाब दूँ? और मम्मा, आपको पता है एक दिन ना मेरी यूनिफॉर्म बहुत गंदी थी। मैंने दादू को कहा मेरी यूनिफॉर्म धो दो, तो उन्होंने नहीं थी धो के दी। मैं ऐसे ही स्कूल चला गया। तो फिर मुझे टीचर ने पूछा अब क्या तुम्हें हो गया? पहले तो तुम बड़े नीट एंड क्लीन आते थे स्कूल, अब तुम्हें क्या हो गया? और सबके सामने और सारी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हुई थी। मेरे बेटों, मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। मेरा खुद तुम दोनों के बिना मेरा दिल नहीं लगता। आप परेशान ना हुआ करो, ठीक है? किसी की बातों पे गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो उठो बेटा, चले। दानिश रुक जाओ, मुझे मेरे बच्चों से जी भर के बातें तो कर लेने दो। पापा, मैं छोड़ दो, मैं पापा पास रहना। पापा प्लीज हमें मामा के पास रहने दो। दानिश, मैंने तो अभी अपने बच्चों को जी भर के देखा भी नहीं है और तुम अपने बच्चों को लेके जा रहे हो। बस मलाइका, बहुत हो गया। दानिश बेटा चले। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ, आपको पता है वो मेरे बच्चों को मेरे से ले गए। माँ, मैंने उनसे अभी बातें भी नहीं थी की, मैंने उनको देखा तक नहीं था माँ, और मुझे मेरे बच्चों से ले गए। माँ, उनको बोलो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे। माँ, मेरा उनके बिना दिल नहीं लगता। माँ, मुझे मेरे बच्चे वापस ना दो। माँ, माँ, मुझे मेरे बच्चे ना दो। मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें? ये घर कभी तुम्हारी कहकों से गूंजा करता था, अब ये खामोशी तुम्हारी मुझे काट खाती है। मेरी बेटी इस सदमे से बाहर निकला और मान ले तकदीर के इस फैसले को। मेरी बेटी, माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटी, बेटी
क्या हो रहा है तुम्हें? बहुत घबरा रहा है बेटी मलाइका, क्या हो रहा है तुम्हें? बेटा किसी डॉक्टर को बुलाओ क्या? नहीं नहीं माँ, मुझे किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आए माँ को बुलाओ, अनीस को भी बुलाओ ना। मैंने उन दोनों को पास देखना है, मैंने उनको गले से लगाना है ना माँ, मैंने अपने बच्चों को सीने से लगाना है माँ। मुझे मेरे बच्चे ला दो माँ, माँ मुझे मेरे बच्चे ला दो माँ। मलाइका, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मेरी बच्ची का क्या कसूर था जो ये सजा उसे मिली? क्या कसूर था? मेरी बच्ची को क्या हो गया? पापा प्लीज़ आज हमें मम्मा से मिलवाने ले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ हमें मम्मा से मिलवाने ले जाओ ना। पापा प्लीज़ हमें मम्मा से मिलाने ले चलो। मेरा बेटा, मैं क्या करूं? मैंने अपनी माँ, अपनी बहन और अपने सारे घर वालों की बातों में आकर अपनी बीवी को खुद से और अपने बच्चों से जुदा कर दिया। और मैंने इसलिए जुदा नहीं किया कि आपको वो प्यार ना मिल सके, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि अपने घर वालों की बातों में आकर अपनी बीवी को छोड़ दिया, और वो प्यार मैं कभी भी नहीं दे सका। आप परेशान ना हो, हम आज ही जाते हैं और मलाइका से जाके माफ़ी मांगते हैं, और हो सकता है अगर मलाइका मुझे माफ़ कर देगी तो मेरा खुदा भी मुझे माफ़ कर देगा। चलो बेटा, चलते हैं। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना, मम्मा उठो, मुझे गले से लगाओ, मम्मा मुझे हग करो, मम्मा उठो ना, मम्मा प्लीज उठो, मम्मा प्लीज उठो ना। मम्मा मम्मा हमें उठ के हक करो, मम्मा उठ के हमें प्यार करो, मम्मा प्लीज उठ जाओ, मम्मा मम्मा प्लीज उठो ना, मम्मा प्लीज उठो। मैं एक छोटी सी बच्ची थी, तेरी उंगली थाम कर सोती थी, तू दूर नजर से होती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी, ख्वाबों का एक रोशन बसा, तू रोज मुझे पहनाती थी, जब डरती थी मैं रातों को तो साथ अपने सुलाती थी। माँ तूने कितने बरसों तक इस फूल को सींचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों को, मैं तेरी याद के तकिए पर अब भी रात को सोती हूँ, मैं एक छोटी सी आईमा हूँ, तेरी याद में अब भी रोती हूँ, तेरी याद में अब भी रोती हूँ। जाकी दे कोड़ फरोला माए, फिक्र मना दे पारियां नू, ठीक नहीं पर दसदी नहीं मैं, हसदी दिखदी सारियां नू, ये शहर भावें वड्डे अम्मीए, तेरी लाडली नू वड वड खांदे, माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे, माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे। जिनकी माँ नहीं होती
वो खाने के मेज़ पर कभी रूठा नहीं करते। अगर वो रूठ जाए तो उन्हें कोई मनाता नहीं। जिनकी मां नहीं होती उन्हें देर रात घर आने पर दरवाज़ा खुला नहीं मिलता, दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। वॉलपेपर ते बेबे बापू तक के खुश हो लैनिया, तेरे उत्ते मान करनगे खुद नू दसदी रहनिया। इत्थे भी उंज बड़ियां ने गल होर सी पिंड दियां सखियां दी, बाकी खुद हिसाब ला ले मां देख के लाली अखियां दी। के तेरे बोले बोल फोन ते ठंड रहिंदे आनी काड़ जे च पौंदे। माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे। माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे। माँ, मुझे तेरी याद आती है, दिल करता है तेरे हाथ चूमूं, तेरे गले लगकर अपनी सारी थकान उतार लूं। माँ उठो ना माँ। खर्चीली जई लाडो तेरी हुण कुट कुट मुठियां जिउंदी ए, सी बैड ते कॉफी पाड़ दी जो हुण दो दो शिफ्टां लाउंदी ए। कर कर चेते करियां चेडां रोंदी ते मुस्काउंदी ए, सी फोन दे विच जो वड़ी रहिंदी हुण गल्लां करना चाहुंदी ए। थापी दे के कहे बापू दे बोल रहिंदे आनी हौसला वधाउंदे। माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे। माए नी मेरे हंजू पूंज दे, मेरे हथ नी नैना तक जांदे। माए नी मेरे नी मम्मा प्लीज उठ जाओ, मम्मा हमें छोड़ के ना आ जाओ। मम्मा मम्मा खुदावंद इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो।